Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello everyone, today we are going to discuss about invertible function. So first you have to know what is invertible function. Suppose let f such that x to y. Okay, here f means function, x here domain and y is codomain. B 1 and onto function, that means बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि 1 और ऑन टू अगर एक साथ होगा तो बाइजेक्टिव होगा. सो यहाँ पर एफ एक्स आ बाइजेक्टिव फंक्शन एंड इफ एफ एक्स इक्वल टू वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई, देन एफ इनवर्स सच दैट वाई टू एक्स डिफाइंड बाई एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड एन इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ. ओके, इसका मतलब अगर एफ एक बाइजेक्टिव फंक्शन है और एफ एक्स इक्वल टू वाई है वेयर एक्स बिलोंग्स टू वाई एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वाई, देन एफ इनवर्स सच दैट वाई टू एक्स and it's defined by f inverse y equal to x. So this is called a inverse function of f. Now a function whose inverse exists, that means the function is 1 and onto function both, is called an inversible or invertible function. Now here are some important properties, or you can say this one the notes of invertible function. The first one, okay, the first one here, the first one is the domain of f inverse equal to the range of f. Remember this one. And the range of f inverse equal to domain of f. F inverse y equal to x if and only if f x equal to y. आपका definition में दिया हुआ था. So x belongs to for where x belongs to x and y belongs to y. Now some other important notes. If f such that a to b is bijective, then f inverse compose f that equal to identity function of a, and f compose f inverse is the identity function of b. If f such that a to b and g such that b to c both bijective, then G compose f such that a to c is also bijective, and G compose f inverse equal to f inverse compose G inverse. Now the last one, let a be an non-empty set and f such that a to a also G such that a to a be two functions such that G compose f equal to identity function equal to f compose G. Then f and G both bijectives, and here G equal to f inverse. So now I am going to solve the exercise problems. So here exercise 1.5 from the book of ML Agarwal. So here the first problem, let f such that 1 2 3 to ABC be a function defined by f1 equal to a, f2 equal to b and f3 equal to c, so that f is invertible and find f inverse. So invertible होने के लिए बाइजेक्टिव फंक्शन होना जरूरी है. इसका मतलब आपको 1 and onto फंक्शन पहले देखना होगा. So 1 2 3 as domain and abc as codomain. So यहाँ पर देखिए 1 के लिए a, 2 के लिए b and 3 के लिए c. That means if each and every different elements of the domain have different images in codomain. Okay, so f is 1 function. Now the next one for onto function. For onto function, here all the elements of b have at least one pre-image from the domain A. Okay, here b means the codomain. So here the elements a, b, c are the elements of codomain, and for a there is a pre-image, for b there is a pre-image, and for c there also a pre-image. That means for y, for all y belongs to the codomain ABC, there exists x belongs to 1 2 3 such that fx equal to y. So f is onto function, and as f is 1 function, f is onto function, that means f inverse exists.
नाउ नेक्स्ट वन, यू हैव टू फाइंड आउट एफ इनवर्स। अब पहले हमने बोला था डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। अब तो मालूम ही होगा यहाँ पर अगर आप एफ का अगर यहाँ पर आपका ऑर्डर पेयर निकालेंगे, सो 1A देन 2B एंड देन यहाँ पर 3C। सो 1 2 3 आर द डोमेन, ABC आर द रेंज। So now here ABC will be domain for F inverse. So ABC as domain and 1 2 3 which is the domain of F will be range of F inverse. So 1 2 3 as the range of F inverse. So just write down F inverse equal to A1, B2 and C3. Now you have to also show that F inverse that equal to F. तो इसका मतलब पहले आपको देखना होगा एफ इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सो एफ इनवर्स इज 1 1 फंक्शन, क्योंकि देखिए हर एक का अलग अलग इमेजेस है, एंड एज वेल एज एफ इनवर्स ऑल्सो ऑन टू फंक्शन, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज है। सो एफ इनवर्स इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बोथ, दैट मीन्स इट एग्जिस्ट। सो नाउ एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स दैट इक्वल टू, अब इसको उल्टा कर दीजिए, 1A 2B एंड 3C। ओके, अब पहले देखिए ए वाला पहले आपका एफ था, सो दैट इक्वल टू एफ हो गया, सो इट्स प्रूव्ड। नाउ सम नंबर 2, लेट एस इक्वल टू 1 2 3 डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ सच दैट एस टू एस डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। सो यहाँ पर देखिए चार दिया हुआ है, फर्स्ट वन एफ इक्वल टू दिस वन द ऑर्डर पेयर्स, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। सो पहले आपको देखना है यहाँ पर जो कौन सा, यहाँ पर जो चार एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें से कौन सा इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले देखते हैं हम कौन सा नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर नंबर टू में देखिए 1 के लिए 2, 2 के लिए 1 एंड 3 के लिए 1। इसका मतलब हियर एलिमेंट्स 2 एंड 3 फ्रॉम द डोमेन हैज़ सेम इमेज एंड दैट इज़ 1। ओके, सो दैट मीन्स इट्स नॉट 1 1 फंक्शन। अगर आपका 1 1 नहीं होगा तो इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए आपको 1 1 और ऑन टू दोनों ही होना चाहिए। तो 1 1 नहीं हुआ, इसका मतलब पहला वाला कैंसिल हो गया, सो इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पर एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो एफ इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। नाउ फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए फर्स्ट में 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, नो प्रॉब्लम। 1 के लिए 3, 3 के लिए 2, 2 के लिए 1, और यहाँ पर 1 के लिए 3, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। ओके, इसका मतलब तीनों में ही शायद एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम चेक करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, क्लियर। सो पहले देखेंगे एफ यहाँ पर ऑन टू फंक्शन 1 1 फंक्शन हो रहा है कि नहीं। अब 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, आपको मालूम ही होगा, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस फ्रॉम द कोडोमेन। सो यहाँ का देखिए 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। ओके, दैट मीन्स हियर क्लियरली एफ इज 1 1 फंक्शन, देयर इज नो डाउट। नाउ सेकेंड क्या प्रूफ करना है, ऑन टू प्रूफ करना है। और ऑन टू का आपका क्या डेफिनेशन था, ईच एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन इन द इमेज ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट फ्रॉम ए। ओके, इसका मतलब यहाँ पर देखिए डोमेन क्या था 1 2 3 और कोडोमेन क्या था 1 2 3। इसका मतलब जो आपका कोडोमेन है, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का, हर एक ईच एंड एवरी एलिमेंट, आपको याद रखना होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास 3 ही एलिमेंट है 1 2 3। सो 1 का यहाँ पर प्री इमेज 2, 2 का प्री इमेज 3 एंड 3 का प्री इमेज 1। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का यहाँ पर प्री इमेज दिया हुआ है। सो दैट मीन्स एफ इज ऑन टू फंक्शन, बिकॉज आपको यहाँ पर लिखना है फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू 1 2 3, कौन सा वाला आपका कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3, दैट मीन्स आपका डोमेन। सो सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। ओके, सो एफ इज ऑन टू फंक्शन हो गया। सो एज एफ इज 1 1 फंक्शन, एफ इज ऑन टू फंक्शन, दैट मीन्स एफ इनवर्स एग्जिस्ट। अब एफ इनवर्स अगर एग्जिस्ट होगा तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे। एफ इनवर्स के लिए आपको तो मालूम ही होगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका डोमेन जितना है वो रेंज हो जाएगा, जो रेंज दिया है वो डोमेन हो जाएगा। ओके, सो 1 1 सेम
अगेन 2 2, अगेन 3 3। सेम क्यों हुआ? क्योंकि आपका देखिए डोमेन क्या है 1 2 3 और रेंज भी आपका है 1 2 3। ओके, सो कोई चेंज नहीं होगा, सो एफ इनवर्स इक्वल टू दिस वन। नाउ सेकेंड और फोर्थ के लिए, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ के लिए आई होप यू कैन सॉल्व इट। और यहाँ पर देखिए सेम आंसर आएगा। अगर आपको 1 1 ऑन टू फंक्शन सेम ही होगा तो आपका आंसर आएगा 3 1 2 3 एंड 1 2, एफ इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका 3 1 2 2 एंड 1 3, एफ इनवर्स हो जाएगा। और वहाँ पर 1 1 एंड ऑन टू तो आपको सेम ही निकला है, एक ही बात लिखना है। फिर वहाँ पर एफ इनवर्स एक्स लिख दीजिए, फिर उसके बाद एफ इनवर्स दिस वन एंड दिस वन लिख दीजिए। Now sum number 3. Explain why the following function f such that x to y do not have inverse. So do not have inverse means इसका मतलब यहाँ पर बाइजेक्टिव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब अगर 1 1 फंक्शन है तो ऑन टू नहीं है, अगर ऑन टू फंक्शन है तो 1 1 नहीं है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर बोलना है कौन सा आपका 1 1 नहीं है और कौन सा आपका ऑन टू नहीं है। ओके, सो पहला वाला यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 1, x इक्वल टू रियल नंबर r माइनस 0। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r बट 0 नहीं होगा, 0 छोड़ के। एंड y इक्वल टू r, ओके, दैट मीन्स हर एक वैल्यू y का रियल नंबर से बिलोंग करता है। एंड इज हियर एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर देखिए अगर y में अगर एक एलिमेंट मैंने यहाँ पर ले लिया 0, ओके, सो सिंस 0 is a real number, 0 belongs to y, clear, and that is real number, you know that. So इसका मतलब अगर यहाँ पर 0 ले लेंगे, so 0 that means fx equal to 0 हो जाएगा। So now 1 by x equal to 0, clear. So 1 by x यहाँ पर 0 होने के लिए अब यहाँ पर x का वैल्यू 0 होना चाहिए, ओके, क्योंकि यहाँ पर y मीन्स आपका इमेज। सो फॉर जीरो इमेजेस के लिए जो प्री इमेज होना चाहिए वो भी आपका 0 होना चाहिए। बट यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है x इक्वल टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसका मतलब जो आपका डोमेन है, डोमेन में वहाँ पर 0 नहीं है, 0 एलिमेंट इज नॉट बिलोंग्स टू फ्रॉम द डोमेन, ओके। सो दैट मीन्स इट्स नॉट अ ऑन टू फंक्शन, क्योंकि ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन ही होता है हर एक इमेजेस का एक प्री इमेज होना चाहिए। और यहाँ पर 0 आपका एक इमेज है जो बिलोंग करता है y में, दैट मीन्स को डोमेन में, और जिसका कोई प्री इमेज आपके पास नहीं है। सो दैट मीन्स f इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, ओके। So f is not a onto function. That means f inverse not exist, and it's proved. So write down, therefore f inverse is not exist. F inverse is not exist, or you can write f is not invertible. Clear? Now sum number 2 2. Here x equal to minus 1 0 1 2, that means this is the domain, and y equal to 2 3 as your codomain. And here given that fx equal to 2 for x equal to minus 1 0 and 1, okay, इसका मतलब f minus 1 equal to 2, f0 equal to 2, f1 equal to also 2, and f2 equal to 3. So आपको दिखाना है यहाँ पर not inverse, that means inverse यहाँ पर exist नहीं कर रहा है। अब तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि देखिए हर एक प्री इमेजेस का एक ही इमेज है 2, -1 के लिए भी 2 है, 0 के लिए भी 2 है, 1 के लिए भी 2 है। अब आपको पहले ही पता 1 1 फंक्शन में क्या होता है, 1 1 फंक्शन में हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए -1 0 1 तीनों के लिए आपका सेम इमेज 2 आ रहा है। दैट मीन्स f is not an 1 1 फंक्शन, ओके। सो 1 1 फंक्शन नहीं है, इसका मतलब बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। सो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ द थर्ड वन, हियर x and y that equal to real number, okay, and fx equal to x square plus 1 for all x belongs to R.
अब यहाँ पर देखिए, अगर 1 and -1 दोनों ही रियल नंबर है, ओके, सो 1 and -1 बोथ आर बिलोंग्स फ्रॉम रियल नंबर, क्लियर। सो इसके लिए अगर f1 इक्वल टू कितना आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इक्वल टू 2। नाउ f-1 कितना आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इक्वल टू ऑल्सो 2। ओके, दैट मीन्स फॉर 1 and -1 here the same image that equal to 2. So that means here also f is not an 1 function. Okay, so f is not an 1 function because here 1 and 1 for the different element 1 and -1, here x has same image, that is 2. Okay, so that means f inverse does not exist. Now sum number 4. Here a is equal to abc and t equal to 1 2 3. Okay, and you have to find out f inverse where the function f from s to t if exist. So here the two options, first one f equal to a3 b2 and c1 एंड सेकेंड वन f इक्वल टू a2 b1 c1। इसका मतलब दोनों के लिए पहले आपको देखना है, अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो यहाँ पर f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। सो फॉर द सेकेंड वन के लिए देखिए यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है b के लिए इमेज 1 है, c के लिए भी इमेज 1 है। इसका मतलब ये वाला आपका 1 फंक्शन नहीं होगा। सो अगर 1 फंक्शन नहीं होगा तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। सो दैट मीन्स दिस हियर फॉर द सेकेंड वन, f inverse not exist. Now for the first one. So in the first one, here for the element a, here the image is 3, for b equal to 2 and for c that equal to 1. Okay, that means here clearly f is 1 function because for every element, that means different element of a have different images. Now second thing you have to check that this is an surjective. Okay, this is a surjective function or onto function. So for surjective के लिए यहाँ पर देखिए आपको देखना होगा आपका कोडोमेन में कितना एलिमेंट है। सो यहाँ पर देखिए t इज द कोडोमेन। सो यहाँ पर देखिए 1 2 3। अब नेक्स्ट थिंग आपको चेक करना होगा तीनों एलिमेंट के लिए अलग अलग प्री इमेज है कि नहीं। सो यहाँ पर देखिए 1 के लिए c, 2 के लिए b एंड 3 के लिए a। क्लियर, 1 के लिए c, 2 के लिए b and 3 के लिए c. That means each element of the codomain has at least one element from A as preimage. Okay, so that means f is also a onto function. For all y belongs to t, there exists x belongs to s such that if x equal to y. Okay, so that means here f inverse exists. So if f inverse exists, you have to find out f inverse. So just change this one, 3a, 2b and 1c. Now sum number 5. Let R be the set of all real numbers. Show that the function f such that R2 R defined by fx equal to 4x plus 5 is invertible. Okay, and also find the inverse of f. So इसका मतलब यहाँ पर आपको इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी दोनों ही चेक करना है, तब तो आपका यहाँ पर इंजेक्टिविटी या सर्जेक्टिविटी अगर चेक नहीं हुआ तो आपको बाइजेक्टिव प्रूफ नहीं होगा। सो फर्स्ट वन फॉर इंजेक्टिविटी और फर्स्ट ऑन वन फंक्शन इंजेक्टिविटी। ओके, अब देखिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन दोनों ही यहाँ पर रियल नंबर है। सो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। क्लियर, नाउ हियर एफ एक्स इक्वल टू दिस वन, सो 4x plus 5 and fy equal to 4y plus 5. So 5 cancel out, it will be 4x 4y and that equal to x equal to y. Okay, so therefore f is 1 function. F is 1 function. Now the next thing you have to prove that f is also
an onto function. Okay, so that means surjectivity. Okay, so here first let y belongs to R be any real number. Okay, y belongs to R be any real number. Then fx equal to y, that means 4x plus 5 equal to y, and from that x equal to y minus 5 by 4. X equal to y minus 5 by 4. So since y belongs to real number, that means this one also belongs to real number, as x belongs to real number. Okay, so that means here fx equal to f y minus 5 by 4. So now what is fx? Fx equal to 4x plus 5. So instead of x, you have to write down this one. So 4 into y minus 5 by 4 plus 5. So here y minus 5 plus 5, and that equal to y. So as fx equal to y, that means here f is onto. Okay, so that means here f is onto. So here f is a bijective function, that means f inverse exists. So as f is 1 function and f is onto function, that means here f is a invertible function. Okay, so that means here f inverse such that R to R. Clear? Now next thing you have to find out f inverse y. So as fx equal to y, so 4x plus 5 equal to y, and from that x equal to y minus 5 by 4. So from that f inverse y equal to y minus 5 by 4, and that is your answer.